नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी और त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पीड़ितों की मदद और पात्रों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने में विलंब नहीं होना चाहिए। वहीं गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित जनता दर्शन के दौरान समस्या लेकर पहुंचे लोगों की सीएम योगी ने बात सुनी। इसी के साथ उन्होंने सभी से आश्वस्त किया कि किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर समस्या का वे प्रभावी निस्तारण कराएंगे। वहीं मेरठ जोन के एडीजी ने आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा और त्योहारों को लेकर पुलिस टीम के साथ महत्वपूर्ण बैठक की, जिसको लेकर उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि जनपद सहारनपुर में सभी राजपत्रित अधिकारियों को 7 अपराध जो नियंत्रण कानून व्यवस्था, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी को सकुशल संपन्न कराने के लिए गोष्ठी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। और वही विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय अधिकारिक यात्रा पर मालदीव पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने विदेश मंत्री मूसा जमीर से मुलाकात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। In June, when he came to India at the oath taking of the third term of the Modi government, and I look forward to his guidance tomorrow on further enhancing our special partnership. During my meeting today, we discussed various aspects of our bilateral ties, including development partnership, defense and maritime cooperation, capacity building, economic and trade ties, and people-to-people linkages. I reiterated India's consistent and continued support to Maldives in its quest for progress and prosperity. India's development cooperation paradigm is that India's own development is inseparable from that of the rest of the world, particularly the neighborhood. Naturally, development cooperation has emerged as a key pillar of our partnership with the Maldives. Over the next 3 days, we will be showcasing the results of our partnership and demonstrate how it has enabled the government of Maldives to build infrastructure, broaden the economic base, make the economy more robust and resilient. In addition to high-impact community development projects that we have virtually inaugurated today, I also look forward to the virtual inauguration and handing over of the water and sewerage projects across 28 islands. This shall be followed by the physical tour, as the Minister mentioned, of the Addu Reclamation Project and the Addu Detour Link Bridge. I have fond memories myself of visiting Addu some years ago to inaugurate the NCPLE, which is a shining example of projects that are imagined by Maldives, delivered by India. I look forward to visiting Addu again. In addition to physical infrastructure, India has also focused on partnering with Maldives for its human resource development. In recent years, we have significantly scaled up our cooperation by launching new programs in diverse areas. It gives me great satisfaction that we are renewing the MOU between the National Center for Good Governance and the Civil Services Commission for an additional 1,000 slots for training Maldivian civil servants. We hope to build on these successes and expand this cooperation to greater heights. Friends, as you all know, India, through its Unified Payment System, UPI, has actually revolutionized digital transactions. In India, it has taken financial inclusion to new levels. Today, 40% of the world's real-time digital payments actually take place in our country. We see this revolution every day in our lives.
I'm pleased to note that the signing of the MOU today, we have taken the first step towards bringing this digital innovation to Maldives. I wish the very best to stakeholders on both sides and hope that we will soon see the first UPI transaction here. I should mention that it will have a very positive impact on tourism. Before I conclude, let me underscore that we are not just close neighbors, we are also natural partners. Today, we are mutually invested in each other's development and progress. In a globalized and interconnected world, we see a lot of volatility and global tensions. Even as the world is recovering from the impact of the COVID pandemic, we have been confronted with new challenges arising from international conflicts. In this tumultuous environment, India has been and will be an anchor of stability for its friends, partners, and neighbors. To Maldives specifically, we have provided support to deal with economic challenges through financial assistance and budgetary support, and by ensuring uninterrupted supply of critical items. Our actions have and will continue to be guided by our firm commitment in the philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas, which is together we prosper. India also recognizes the need for the Global South to speak in a common voice and have an appreciation for mutually shared interests and concerns. Giving voice to the aspirations of the Global South was a top priority for India during its G20 presidency. We continue those endeavors and will soon be hoping to host the third Voice of the Global South Summit. And Minister, we will be very privileged to have the participation of Maldives on that occasion. So, Excellency, ladies and gentlemen, friends, let me take this opportunity once again to say how good it is to be back here in the Maldives. I look forward to my program for the remainder of the visit, and it is, I must say, deeply satisfying to see the fruits of our relationship materialize in a very concrete form. And I hope that my visit and the discussions which we will have, Minister, will jointly lay the foundation of bigger and better things in the days to come. Thank you very much. तो देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव के दौरे पर हैं। उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और इसी के साथ साथ अपने देशों को किस तरह से और विकास की ओर अग्रसर करना है, इस बात का भी जिक्र किया और इसी के साथ साथ किस तरह से आपसी सामंजस्य स्थापित करना है, इस बात का भी जिक्र किया। आगे बढ़ते हैं, जहां गोरखनाथ मंदिर में नाग पंचमी के मौके पर कुश्ती प्रतियोगिता के विजेताओं का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, कालीबाड़ी के महंत श्री रविंद्र दास जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री विष्णु सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश सरकार के खेल और युवा कल्याण विभाग के सचिव श्री सुहास अनुयायी जी, जिला कुश्ती संघ के अध्यक्ष पहलवान श्री दिनेश सिंह जी, जिला कबड्डी संघ के श्री अमरेश शाही जी, जिला हॉकी संघ से श्री मनीष सिंह जी,
आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी खेल प्रेमी महानुभाव, प्रतिभागिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज नाग पंचमी का पावन पर्व भी है और काकोरी ट्रेल एक्शन के शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ भी है। एक साथ इन दो महत्वपूर्ण घटनाओं और पर्वों का आयोजन होना किसी सुखद आयोजन से कम नहीं। इस अवसर पर काकोरी ट्रेन एक्शन के महानायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए आज ही के दिन 1925 को लखनऊ के काकोरी में ट्रेन एक्शन की घटना को अंजाम देकर के ब्रिटिश हुकूमत को चैलेंज किया था। उनके साथ में थे राजेंद्र नाथ लाड़ी, ठाकुर रोशन सिंह, असफाउल्लाह खां, ऐसे तमाम क्रांतिकारी उनके सहयोगी थे और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का गोरखपुर से संबंध था। गोरखपुर की ही जेल में उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। राजेंद्र नाथ लाड़ी, ठाकुर रोशन सिंह और असफाउल्लाह खां को गोंडा, फैजाबाद और नैनी प्रयागराज की जेल में फांसी की सजा दी गई थी। आज से लेकर के 9 अगस्त 2025 तक प्रदेश सरकार भारत माता के उन महान सपूतों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव का आयोजन कर रही है। और ये सुखद संयोग है कि क्रांतिकारियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, युवा शक्ति के जागरण के लिए, उसकी प्रतिभा और उसकी शक्ति का लाभ समाज और देश को प्राप्त हो, इसके लिए आज नाग पंचमी के अवसर पर इस कुश्ती प्रतियोगिता के आयोजन के साथ मुझे स्वयं भी गोरखपुर में जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे बताया गया कि इस कार्यक्रम में लगभग 300 पहलवानों ने भाग लिया, जिसमें जनपद, गोरखपुर मंडल, खेल विभाग, कुश्ती सदो संघ, प्रदेश के अंदर विभिन्न कुश्ती संघ है, कुश्ती छात्रावास है, स्पोर्ट्स कॉलेज है, उनके 300 से अधिक पहलवानों ने इस पूरे आयोजन में भाग लिया। इसके अलावा अभी यहां पर वीर अभिमन्यु उत्तर प्रदेश कुमार की प्रतियोगिता संपन्न हुई और थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश केसरी का फाइनल मुकाबला भी हम सबको देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश कुमार का मुकाबला कितना रोचक और कितना जोरदार था। उत्तर प्रदेश कुमार में विनर के रूप में जो पहलवान यहां जोर आजमाइश कर रहा था, या खेल कोटे से ही उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुआ है और जो रनर थे और रेलवे में वे सेवा दे रहे हैं। खेल अब व्यक्ति के भविष्य को बनाने के साथ साथ, व्यक्ति को स्वस्थ रखने के साथ साथ उसके भविष्य को बनाने का एक माध्यम बन चुका है। और हम लोगों ने स्वयं 500 ऐसे खिलाड़ियों को, जिन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड, स्टेट गेम्स, वर्ल्ड चैंपियनशिप, नेशनल गेम्स में जिन्होंने मेडल जीते हैं,
उन खिलाड़ियों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ विभिन्न विभागों में शासकीय नौकरियां प्रदान की हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 2 वर्ष के अंदर ही लगभग 500 खिलाड़ियों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर खेल विभाग में नौकरी प्रदान की है। बहनों और भाइयों, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के प्रदेश के जो खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में जो मेडल प्राप्त करते हैं, इस समय फ्रांस में, पेरिस में ओलंपिक चल रहा है। कल आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा ने कल भाला फेंक कार्यक्रम में देश के लिए रजत पदक जीता है। भारत की हॉकी टीम ने प्रदेश के अंदर, देश के अंदर और दुनिया के अंदर खिलाड़ियों का मान बढ़ाते हुए, भारत का मान बढ़ाते हुए लगातार दूसरे ओलंपिक में फिर से मेडल प्राप्त किया है। याद करिए, जब आज से 4 वर्ष पहले भारत के खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीता था, तो हम लोगों ने भारतीय ओलंपिक खेलने वाले भारतीय हॉकी टीम के उन खिलाड़ियों का लखनऊ में सम्मान भी किया था। और उत्तर प्रदेश से लड़ने वाला भारतीय हॉकी टीम के साथ एक सदस्य के रूप में कार्य करने वाला, खेलने वाला लड़का उपाध्याय को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी के पद पर सीधे नौकरी दी है। आपने देखा होगा भारत को फाइनल में पहुंचाने में उन्होंने कितने शानदार गोल किए थे। और कल भी उत्तर प्रदेश के एक खिलाड़ी जो भारतीय हॉकी टीम का सदस्य है, राजकुमार, गाजीपुर में ही प्रशिक्षण लिया है, कानपुर का रहने वाला है, उन्होंने भी शानदार खेल का परिचय देते हुए स्पेन को हराने में मदद की है। बहनों और भाइयों, भारत के खिलाड़ी आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खेल को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर स्वर्ण पदक ओलंपिक एकल गेम में प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को हम प्रदेश सरकार की तरफ से 6 करोड़ रुपए की नगद सहायता देते हैं। रजत पदक पर 4 करोड़ रुपए और कांस्य पदक पर 2 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराते हैं। ओलंपिक गेम्स, टीम गेम्स में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 2 करोड़ और कांस्य पदक पर 1 करोड़ रुपए की सहायता हम लोग टीम को उपलब्ध करवाते हैं। एशियन गेम में स्वर्ण पदक पर 3 करोड़, रजत पदक पर 1.5 करोड़ और कांस्य पदक पर 75 लाख रुपए की सहायता हम लोग प्रदेश की ओर से उपलब्ध करवाते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाते हैं। तो विश्व कप की प्रतियोगिता में भी स्वर्ण पदक पर 1.5 करोड़, रजत पदक पर 75 लाख, कांस्य पदक पर 50 लाख रुपए की राशि उपलब्ध करवाते हैं। ऐसे ही स्टेट गेम्स और नेशनल गेम्स में भी प्रदेश सरकार इन सभी खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम करती है। प्रदेश का जो खिलाड़ी ओलंपिक क्वालिफाई करता है और टीम का सदस्य होता है, उस खिलाड़ी के लिए भी प्रतिभा करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप प्रदेश सरकार की तरफ से हम लोग 10-10 लाख रुपए की सहायता देते हैं। और साथ साथ एशियन गेम्स में प्रतिभा करने वाले खिलाड़ी को 5-5 लाख रुपए की नगद पुरस्कार से भी हम सम्मानित करने का काम करते हैं। आप सब जानते हैं कि अच्छे खिलाड़ियों को हम लोग प्रतिवर्ष पुरुषों में लक्ष्मण पुरस्कार,
और महिलाओं में रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, जिसमें एक कांस्य प्रतिमा, प्रशस्ति पत्र और 3,11,000 रुपए की नकद राशि हम लोग उन खिलाड़ियों को जिन्होंने खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है उन्हें प्रदान करने का कार्य करते हैं। प्रदेश के अंदर अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, खेल रत्न पुरस्कार और खेल के क्षेत्र में पद्म श्री व पद्म भूषण से सम्मानित खिलाड़ियों को भी 20,000 रुपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदेश सरकार से उपलब्ध करवाने का कार्य होता है। तो साथ ही साथ खिलाड़ियों के लिए वृद्ध होने, अशक्त और विद्याग्रस्त होने पर राज्य के खिलाड़ियों, राज्य स्तर के खिलाड़ी को 4,000 रुपये, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 6,000 रुपये और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को 10,000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता हम प्रदेश सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाने का कार्य करते हैं। प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा कि हॉकी में ललित कुमार उपाध्याय को, क्रिकेट में सुश्री दीप्ति शर्मा को, एथलेटिक्स में सुश्री पारुल चौधरी को, शूटिंग में अखिल श्योराण को, कबड्डी में अर्जुन देशवाल को हम लोगों ने पुलिस उपाधीक्षक पद यानी डिप्टी एसपी पद पर सीधे नौकरी दिया है गत वर्षों में। विजय कुमार यादव को जूडो में, सुश्री दिव्या काकरान को कुश्ती में पदक प्राप्त करने पर नायब तहसीलदार और पुनीत कुमार को नौकायन में, सुश्री प्राची एथलेटिक्स को जिला युवा कल्याण अधिकारी और श्री अर्जुन सिंह को प्रदेश के अंदर यात्री और मालकर अधिकारी के रूप में हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट विभाग में उन्हें नौकरी प्रदान की है। यानी प्रदेश के अंदर खेल और खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा माहौल बने, इसके लिए प्रदेश के अंदर 16 खेलों में